جماعت اسلامی کی کال پر اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ تاجران بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ مکمل بند ہے۔ عابد الیکٹرانکس مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کے تمام کار ڈیلرز مارکیٹیں بند ہیں۔ لاہور انجمن تاجران نئی میر گروپ بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا حصہ۔ خلا منڈی، انارگلی اور ملحقہ مارکیٹیں بھی بند ہیں، جبکہ برانٹیڈ روڈ اور ہول روڈ اور مال روڈ بھی مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ ہڑتال کی جا رہی ہے۔ بات کرنے کے لیے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا کہاں کہاں پہ ہڑتال اس وقت کی جا رہی ہے؟ آج جماعت اسلامی اور دیگر جو مذہبی جماعتوں کی کال کے اوپر ملک گیر جو ہڑتال ہے وہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے حق میں ہے، وہ کی جا رہی ہے۔ لاہور کی بات کریں تو لاہور کی تمام بڑی جو ہول سیل مارکیٹیں ہیں وہ آج وہاں پر مکمل طور پر بند ہیں، جن میں شاہ عالم مارکیٹ ہے، ایک بڑی منڈی ہے، گلہ مارکیٹ ہے، انارکلی اور اعظم کلاتھ مارکیٹ سمیت جو عابد الیکٹرانکس مارکیٹ ہے مکمل طور پر بند ہے۔ اور تاجر برادری کا یہی پیغام ہے کہ آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنا کر حصہ بن کر جو فلسطینی مسلمانوں کے حق میں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ مرکزی جو قائدین ہے تاجر الیکٹرانکس مارکیٹ میں موجود بھی ہیں، صدر ہیں عابد الیکٹرانکس مارکیٹ کے سینئر تاجر ہیں میاں طارق فیروز صاحب سے بات کریں گے۔ جی میاں صاحب، کیا برادری جو ہے آپ ہڑتال جا رہی ہے، ایسا کیا مقصد تھا کہ تاجر کر رہی ہے؟ دیکھو، یہ کافی عرصہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے اوپر رضا فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے پاس بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بال کھینچے جا رہے ہیں، اور کافی آدمی جو ہے 50-60 ہزار آدمی شہید ہو چکا ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہے، 5 لاکھ آدمی جو بےگھر ہے، ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ بلڈنگیں اتنے کھنڈرات بنا دیا ہے، 50 سال بھی لگے ہوئے بلڈنگیں اب نہیں بن سکتی، مگر ہم مسلمان قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمارے مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہماری حکومت کو بھی ساتھ دے رہے ہیں، 57 ملک پاکستانی ہے، ان کو یکجہتی ہو کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، کیا کہیں گے لاہور کی تمام ہول سیل مارکیٹیں ہیں وہ آج بند ہیں، کیا مقصد کیا تھا آخر ایسا احتجاج کرنے کا؟ دیکھیں، یہ بڑی کلیئر بات ہو گئی کہ ہم پاکستانی ہیں اور فلسطین ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں انتہائی تکلیف ہے کہ دیکھیں وہاں پہ بچے، بوڑھے، عورتیں جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، آج یہ اظہار ہو گیا کہ فلسطین کو کچھ بھی ہوا تو پاکستان پورا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جیسے میاں صاحب نے کہا کہ 57 کنٹری مسلمانوں کے ہیں، یہ کم و بیش ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے نا تو اس طرح کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام ممالک ان کے ساتھ ہیں، تو آٹومیٹکلی فرق پڑے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے فلسطین بھائیوں کو موقع دیا جائے وہاں رہنے کا، وہاں بیٹھنے کا، جو زیادتیاں ظلم ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں۔ جی صاحب، آپ بتائیں کہ ہڑتال بھی ہو رہی ہے، بائیکاٹ مہم بھی جاری ہے، مزید کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت وقت سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف؟ آج یہاں ہم فلسطین سے جارحیہ ٹھیک ہے، سعید ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کی کال پر اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے آج ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے اور تمام تاجر برادری میدان میں ہے۔ بادامی باغ آٹو مارکیٹ بند ہے، عابد الیکٹرانک مارکیٹ میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اسی طرح شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے اور اہل غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر کی تمام کار ڈیلرز مارکیٹس بند ہیں۔ لاہور انجم تاجران نعیم میر گروپ بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا حصہ ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں شہر میں ریٹیل کی مارکیٹس اور بازار کھلے ہیں، چونگی امر صدوق کینٹ کی مارکیٹس کھلی ہیں، جوڑے پل ہربنس پورہ شالیمار لنک روڈ کی مارکیٹس بھی آج کھلی ہیں، جبکہ مناوا، جی ٹی روڈ، باغبان پورہ بازار میں معمولی کی سرگرمیاں اس وقت جاری ہیں۔ مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے شہزاد خان عبدالی سے، بتائیے گا۔ آج شہر کی تاجر برادری کی جانب سے جماعت اسلامی کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ آج شہر کی زیادہ تر جو ہول سیل مارکیٹیں ہیں وہ بند رکھی گئی ہیں، جس میں اندرون لاہور بھی شامل ہے، مگر شہر میں جو ریٹیل سے وابستہ مارکیٹیں اور بازار ہیں اور اس کے علاوہ شاپنگ مالز ہیں، ان کو تاجر برادری نے آج کھلا رکھا ہے اور ریٹیل کی مارکیٹوں، بازاروں اور جو گلی محلوں کے اندر دکانیں ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں کھلی نظر آ رہی ہیں۔ شہر کے جو علاقے کھلے ہیں ان میں لبرٹی مارکیٹ آج آپریشنل ہے، اس کے علاوہ برکت مارکیٹ، گلبرگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلبرگ میں واقع جتنے بھی شاپنگ مالز ہیں، پلازے ہیں، وہ بھی آج تاجر برادری کی جانب سے کھلے رکھے گئے ہیں۔ گلبرگ سے تھوڑا آگے بڑھیں
तो इकबाल टाउन में करीम मार्केट खासी मसरूफ़ रहने वाली मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में ग्राहक आते हैं। उसको भी ताजर बरादरी ने आज जो है वो खुला रखा है। और इसके अलावा लिबर्टी मार्केट के साथ MM आलम रोड जो है वो भी आज ताजर बरादरी खुला रखेगी। इसके अलावा जो कैंट की मार्केटें हैं और जो डिफेंस की मार्केटें हैं वो भी ताजर बरादरी खुली रखेगी और उसमें भी आज कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक होगा। इसके अलावा शुमाली लाहौर की तरफ आ जाएं तो शुमाली लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें बागबानपुरा बाज़ार भी है, जलो बाज़ार है, मनावा GT रोड के इलाके हैं, शालामार लिंक रोड है, ये भी आज ताजर बरादरी की जानिब से खुला रखा गया है। इसके अलावा सदर बाज़ार कैंट और जोड़े पुल का इलाका, इससे मुंसलिक जो मार्केटें हैं वो भी ताजर बरादरी की जानिब से आज खुली रखी गई हैं। और ताजर बरादरी की जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत गज़ा के मामले में एक तवाना आवाज़ उठाए और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करे कि गज़ा के अंदर जो मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है उसको हंगामों पर रुकवाया जाए। शुक्रिया शहजाद। बात करें सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का ये मामला है और चेरिंग क्रॉस ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 20वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से ठेकेदारी निज़ाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। धरने में पंजाब भर से यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज ने शिरकत की है। हस्पतालों, बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेकेदारी निज़ाम की सपोर्ट करना काबिल कबूल नहीं है। मुजाहिरीन की जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, अबू बकर शेख से बात कर लेते हैं। जी अबू बकर। जी, सरकारी इलाज गाहों को ठेकेदारी निज़ाम पर मुंतकिल करने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का जो धरना है ये 20 रोज़ से जारी है। मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, 20 दिनों से आप लोग साबित कदम हैं, आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? हमारे मुलाजमीन आप देख रहे हैं आज भी हज़ारों की तादाद में जूं के तूं बैठे हुए हैं और हमारे अभी तक हुकूमत ने ना तो कि मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी संजीदा तश्कील दी है। कल भी हमने पूरे लाहौर के रोड चौक रखे और मजबूरन जो है पूरे लाहौर की सड़कों पर हमने एहतजाज किया। उसके बावजूद अभी तक हमसे संजीदा हो के किसी ने कोई मुज़ाकरात के लिए बात नहीं की जो इस मसले के पुरअमन हल की तरफ जाया जा सके, जिससे इन मुलाजमीन की मुश्किलात भी कम हो। जो OPD 8 दिनों से बंद है वहाँ पे जो मरीज़ों को परेशानी हो रही है उनकी परेशानी भी कम हो सके। इंशाअल्लाह ताला मंडे को जो है वो पंजाब असम्बली से CM हाउस तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी और अपना एहतजाज भरपूर तरीके से जो है रिकॉर्ड करवाया जाएगा। ख़वातीन मुजाहिरीन भी मेरे साथ मौजूद है। मैडम क्या कहेंगी, यहाँ पे ख़वातीन की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग इस रैली की भरपूर हिमायत भी करेंगे क्योंकि ये हमारे हक के लिए है। पड़ी ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हम साथ लेके आए क्योंकि इनके स्कूल ज़ाया हो रहे हैं। हम घर जाएंगे तो इन लोगों को बिठाएंगे। जब तक मरियम नवाज़ साहबा हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती हम लोग यहाँ बैठेंगे और उन्हें हमारे मुतालबात पूरे करने पड़ेंगे। इनका ये कहना है कि इनकी जो अगली स्ट्रेटजी है वो पीर के रोज़ इधर से ही चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली से वज़ीर आला हाउस तक एक पुरअमन रैली निकालेंगे और अपने एहतजाज करवाएंगे। ठीक है अबू बकर शेख, बहुत शुक्रिया आपका। और अब लाहौर शहर के लिए बड़ी खबर यह है कि सबसे बड़े ज़ेर ज़मीन सीवरेज मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। वफाक ने 49 अरब से शहर के पहले टनल बोरिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। लॉरेंस कॉलोनी से गुलशन रावी तक ड्रेन सीवरेज मंसूबा CDWP में पेश कर दिया गया है। मज़ीद डिटेल्स दौरे ने आपसे हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के सीवरेज के एक बहुत बड़े मेगा और जदीद मंसूबे को मंजूरी मिल गई है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी ने इस मंसूबे की मंजूरी दी है और ये टनल बोरिंग प्रोजेक्ट है लाहौर में जो लॉरेंस कॉलोनी से गुलशन रावी तक जाएगा। तकरीबन 28 किलोमीटर ये तवील होगा और इसके लिए 49 अरब रुपए का जो बजट है वो रखा गया था और इस हवाले से वफाकी हुकूमत से इसकी मंजूरी लेना लाजमी है। अब इसको एक्निक में भिजवाया जाएगा और एक्निक की मंजूरी जो है हतमी तस्वर की जाएगी। एक्निक की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर अमली तौर पर काम होता नज़र आएगा और लाहौर शहर के अंदर बल्कि पंजाब और पाकिस्तान के अंदर पहला टनल बोरिंग प्रोजेक्ट होगा जिसे टनल के ज़रिए 28 किलोमीटर तक मुकम्मल तौर पर ये सीवर लाइन बिछाई जाएगी और लाहौर शहर के बीचों बीच उसके अंदर वस्ती लाहौर है, सेंट्रल के अलावा जो दूसरा पार्ट्स हैं लाहौर के उनके अंदर से गुजरते हुए ये लॉरेंस कॉलोनी से सीधा गुलशन रावी तक जाएगा और इससे लाहौर शहर के अंदर जो ड्रेनेज का इशू है, जो मेगा ड्रेनेज सीवरेज डिस्पोजल का इशू है वो हमेशा के लिए हल होता हुआ नज़र आएगा। इस हवाले से MD वासा का कहना है कि मनसूबे पर अब वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद एक्निक में भिजवाया जा रहा है और एक्निक के मंजूरी मिलने के बाद इस पर बख्शू हो ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नायाब।
अब बात करें मौसम की तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, शहरी निढाल हो गए। दिन भर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया कि दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी कोमल। लाहौर के मौसम इस वक्त भी सूरज की चिलमिलाती किरणों ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। गर्मी के एहसास में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है, हवाएं मुकम्मल तरीके से थमी हुई हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो वाज़े तौर पर और बहुत ज़्यादा इजाफे के साथ महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से फिलवक्त बारिशों से मुतालिक भी कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर लाहौर का मौसम जो है वह गर्म और खुश्क रहेगा और रवां हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान फिलवक्त मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त तकरीबन 53% है, जबकि हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएगी, जो कि इस वक्त मुकम्मल तरीके से थमी हुई है। वहीं अगर बात करते हैं हम लाहौर शहर के बासियों के हवाले से, तो बासी अपनी एहतियात को यकीनी बनाते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवा नजर आ रहे हैं। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि बेहद एहतियात की जरूरत है, अपने चेहरों को ढांप कर घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ जो है वो बच्चे और बूढ़ों को खास तौर पर कहा जा रहा है कि इस गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से बेहद जो है वो हिफाजत करवाई जाए, ताकि जो मनफी असरात हैं बदलते मौसम के उससे बचाया जा सके। लिहाजा लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने के जहाँ भी देखे तामीराती काम हो रहा है वहाँ पे पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो मिट्टी के ज़रात हैं वो फिजा की जो आलूदगी में इजाफे का सबब बन रहे हैं उसको जड़ से ख़त्म किया जाए, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। आपको बताएं कि 1 मई यौम मजदूर पर बरोज़ जुमेरात को आम तातील होगी। 1 मई को सेक्रेटेरिएट, दफातर और तमाम इदारे बंद रहेंगे। सूबे भर में 1 मई को आम तातील होगी। 1 मई यौम मजदूर पर बरोज़ जुमेरात को आम तातील होगी। 1 मई को सेक्रेटेरिएट, दफातर और तमाम इदारे बंद रहेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, 1 मई जो है वो बरोज़ जुमेरात को सूबा भर में लाहौर शहर में आम तातील होगी। तमाम दफातर, इदारे, सलीमी इदारे, सेक्रेटेरिएट, दिल्ली हुकूमत के दफातर, डिवीजनल हेडक्वार्टर दफ्तर और तमाम इदारे बंद होंगे। अस्पतालों के जो MS के दफ्तर हैं वो और OPD भी बंद होंगे, लेकिन जो पैरामेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर हैं उनको छुट्टी होगी, लेकिन जो एमरजेंसी है वो खुली होगी। इंडोर जो है वो भी खुला होगा। तो यौम मई की आम तातील है, ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। और अब बात करें महकमा स्कूल एजुकेशन की संगीन गफलत की, तो 3 प्राइमरी स्कूल्स में एक भी मुस्तकिल टीचर तैनात न होने का इंकशाफ हुआ है। शहर के 14 स्कूल्स के गैर फ़ाल होने का इंकशाफ सामने आया है, जबकि एलिमेंट्री सतह के 4 और प्राइमरी सतह के 10 स्कूल्स गैर फ़ाल हो चुके हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 10 में तालिबा की तादाद 86, एक टीचर्स को भी तैनात नहीं किया गया। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे, बताइएगा। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन जिसका बजट अरबों रुपए में है, लेकिन अगर बात की जाए प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स की तो कहीं पर गैर फाल स्कूल नज़र आते हैं और कहीं जो है वो स्कूल्स में असातिज़ा की खाली असामियाँ ही पूरी नहीं की जाती। तो लाहौर शहर में मजमूई तौर पर 14 ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें 4 एलिमेंट्री और 10 प्राइमरी के स्कूल्स हैं, जिनकी महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये बताया गया है कि ये स्कूल जो है वो गैर फाल है। जबकि 3 स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर मुस्तकिल असातिज़ा ही मौजूद नहीं हैं। यानी तहसील शालीमार का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दसोइयाँ लाहौर, यहाँ पर जो तादाद है बच्चों की वो 86 है। 3 मंजूर शुदा असामियाँ हैं, लेकिन एक टीचर को NSB फंड के तहत डिप्यूट किया गया, जो कि यहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह से तहसील रायवंड के 2 स्कूल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भाईकोट, जिसमें जो बच्चों की तादाद है वो 60 है, 4 खाली असामियाँ हैं मंजूर शुदा, लेकिन एक जो टीचर है वो अभी NSB फंड से उसको डिप्यूट किया गया और वही यहाँ पर तमाम स्कूल का निज़ाम चला रहा है। इस हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी का जो जवाब है वो बड़ा दिलचस्प है कि महकमा ख़जाना को 2024 में, यानी ये 25 चल रहा है, जो वो इस हवाले से केस भेजा गया था और अभी तक शायद मंजूर नहीं हुआ। जो ही मंजूर होगा तो असातिज़ा की किल्लत का मामला हल कर दिया जाएगा, ये कहना
ہے پارلیمانی سیکرٹری کا. چونکہ تبادلہ جات پر بھی پابندی تھی اور تبادلہ جات کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہی تبادلوں پر پابندی ہٹتی ہے تو اس حوالے سے ان اسکولوں میں جو مطلوبہ تعداد ہے اساتذہ کی وہ بھی پوری کر دی جائے گی. لیکن فی الحال المیہ یہ ہے کہ 3 اسکولوں میں مستقل ٹیچرز تعینات نہیں، جبکہ مجموعی طور پر 14 اسکولز ہیں ایلیمنٹری اور غیر فعال ہیں. بہت شکریہ راود الشاد.